તુંબરુએ બિંદુક જે ભૂત બનેલો હતો, પ્રેત બનેલો હતો, એ પ્રેતાત્માને ઝાર સાથે બાંધે છે અને બાંધ્યા પછી એને શિવ પુરાણની કથા સંભળાવે છે. બિંદુકે શિવ મહાપુરાણનો શ્રવણ કર્યો અને પ્રેત યોનિમાંથી છૂટીને શિવના ધામમાં જઈને શિવના સામીપ્ય પ્રાપ્ત કરે છે અને શિવના ગણ થઈને પછીથી ગણાધિપતિ પણ બન્યો છે અને શિવના પ્રિય પાત્ર બનીને શિવના ધામમાં એમને નિવાસ કર્યો છે. આ શિવ કથાનો મહાત્મ છે. સંતો કહે છે કે શિવ સત્સંગ જે છે, કથા, શિવ કથા સાંભળવા, એક શિવની જે કથા છે એ શિવ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવી દે છે. કરોડ વાજપેયી જગ કોઈ કરે એટલું ફલ એક કથા સાંભળવાથી મળે છે. આખા ભારતમાં જેટલા તીર્થસ્થાનો છે, 1000 વખત બધી યાત્રા કરી આવો અને એક વખત શિવ પુરાણની કથા સાંભળો તો એમ કહે છે કે એક વખત જે શિવ પુરાણની કથા સાંભળે છે એ પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ તીર્થયાત્રાઓ છે 1000 વખત યાત્રા કર્યાનો એનો ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. સ્વયં તીર્થ રૂપ છે. મેરુ જેટલા સોનાનો દાન કરો. મેરુ એટલે સુમેરુ પર્વત, હિમાલય પહાડ. હિમાલય પહાડનું વજન કેટલું હશે? એટલું સોનું તમે દાન કરો અને જે પુણ્ય મળે એ શિવ પુરાણના કથા કરાવનારને ફળ મળે છે. સંતોના સત્સંગથી આ બધું પ્રાપ્ત થાય છે. બિંદુક નો ઉદ્ધાર થયો છે. હવે ચંચુલા પાર્વતીની સહેલી બની છે. આ કથાનું મહત્વ છે. મેરે પ્યારે, જાને અજાને પણ મારા તમારાથી કંઈ પાપ થયું હોય તો ભગવાન ભોલેનાથ સૌને માફ કરે, ક્ષમા કરે અને આ શિવ મહાપુરાણની મહિમા આપ સૌને કલ્યાણકારી થાય એવી શુભકામના આપું છું. કથા સંતોના સંગનું બહુ મહત્વ બતાવ્યું છે. સંતોના સંગમાં હો ભવ જલ તરાય છે. સંતોના ભવ જલ તરાય છે, જીવન જીવાય છે. શિવની કથાથી હો પાપો ધોવાય છે. શિવની પાપો ધોવાય છે, એના પુણ્યો કમાવાય છે. પાપો કમાવાય છે, એના પુણ્ય કમાવાય છે. સંતોના સંગથી હો ભવ જલ તરાય છે. અલ્હાબાદમાં કુંભનો મેળો ભરાયો. દૂર દૂરના દેશ દેશના સંતો કુંભ મેળામાં આવ્યા. આ વખતે પણ જનવરી ફેબ્રુઆરી માસમાં કુંભનો મેળો છે. તમારા દંડી બાપુ 11 તારીખથી 23 તારીખ સુધી અમદાવાદ બોપલના શેઠ, હવે બની ગયા છે સાધુ એવા ચંદ્રેશ્વર બાપુ, ચંદુ કાકા પ્રજાપતિ, ચંદુ કાકાની તરફથી રામકથા છે 15 થી 23 તારીખ સુધી. વૈજનાથ ધામની કથા પૂરી કરીને હું રસ્તામાં જ ઉતરી જઈશ. ત્યાં પાછું આવું ને જાઉં એના કરતાં ત્યાં જ ઉતરી જાઉં. 2 દિવસ વધારે કુંભ મેળામાં રહેવાય તો ત્યાં કથા છે. વાહ, ઉંદેડી ક્યાં? તો ઉંદેરો છે. પછી તો પૂંછડી ક્યાંથી જાય? વાહ, આ કથાના પ્રતાપે મોટું થઈ ગયું. કુંભ મેળામાં રામજીની કથા કરવા જઈશ તો ત્યાં બૈજનાથ ધામની કથા કરીને આવીશ. ત્યાં બૈજનાથ ધામની કથામાં 1 તારીખ 1 જનવરીની રાત્રે નીકળવાનો છું. પછી આશ્રમ 25 જનવરીએ આવીશ. ત્યાં સુધી બહાર બાબો બેઠો જપે અને જે આવે બધું. અમારે ધંધો શું? મારો ધંધો હરિગુણ ગાવાનો, મારો ધંધો ગાવાનો, ગભરાવાનો,
मारो धंधो हरि गुण गावानो मारो। तो इलाहाबाद में कुम्भरो मेरो भरायो, कहीं राम कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं शिव पुराण की कथा, अनेक प्रकार की कथाएं, सत्संग, कहीं उपनिषदों का भाष्य, अनेक प्रकार की कथाएं हो रही है। तो वहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में संगम के तट पर 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ में सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज को देख करके शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, हमारे कुछ प्रश्न हैं। जो प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया। क्या बताया था प्रश्न आपको? प्रश्न है कि सदाचार से हमें कैसे रहना चाहिए, भक्ति की प्राप्ति कैसे हो, विवेक में जीवन लोग कैसे जिएंगे, विकार का आक्रमण सबके ऊपर होता है, उसे रोकने का उपाय क्या है, कलयुग का ध्यान कैसे रखें और शिव की प्राप्ति कैसे हो, ये सब प्रश्न है। तो इन सब के प्रश्न को लेकर के आपस में महात्माओं का झगड़ा चल रहा था। कोई कह रहा है ऐसा करो, कोई कह रहा है वैसा करो। ये सनातन काल से चला आ रहा है। ऋषि मुनि महात्मा लोग झगड़ा करने लगे, मैं बड़ा तुम छोटा, वो बड़ा वो छोटा, ये अच्छा ये बुरा, ये लड़ाई होने लगी। महात्माओं का झगड़ा इतना बढ़ गया, बेदारूडिया झगड़ों करे तो ये दोनों दारू पीने वाले का झगड़ा 1-2 घंटे में ठीक हो जाता है। और दो पढ़ा लिखा विद्वान समझदार व्यक्ति अगर झगड़ा करे तो 4-6 महीना 12 महीना या 2-5 वर्ष तो कोर्ट में ही चल जाता है, क्योंकि होशियारी आदमी को ज़्यादा परेशान करता है। इस दुनिया को बनाया है पागलों ने और बिगाड़ने का काम किया है बुद्धिमानों ने। ये अणुबम किसने बनाया? किसी पागल ने बनाया क्या? 2 दारू पीने वाले इकट्ठे रह लेंगे, लेकिन 2 पढ़े लिखे, मेरी कुर्सी उससे 2 उंगली ऊपर होनी चाहिए, इसी लड़ाई में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये बड़ाई की जो लड़ाई है, बड़ेपन की जो लड़ाई है, ये बहुत खतरनाक होती है। तो महात्माओं इकट्ठे हो गए, लड़ाई करने लगे। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? न निर्गुण बड़ा न सगुण बड़ा, न तू बड़ा न मैं बड़ा, दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है, दुनिया में कोई बड़ा ही नहीं है। सबसे बड़ा है भगवान का नाम जपने वाला, भगवान का भक्त। एक बार पृथ्वी बोली कि मैं सबसे बड़ी, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो कहा पृथ्वी कि तुम अगर बड़ी तो शेष नागे के माथे पर क्यों पड़ी? शेष नाग ने कहा मैं सबसे बड़ा। तो तू महादेव के गले में क्यों पीड़ा? महादेव जी ने कहा तब तो हम ही सबसे बड़े हैं, मैं बड़ा। कहा जब आप सबसे बड़े हो तो आप हिमालय पर क्यों खड़े हो? हिमालय ने कहा मैं बड़ा। बोला तू भी नहीं बड़ा, अगर तू बड़ा हो तो रावण के हाथ पर कैसे उठ खड़ा हुआ? रावण ने तुझे हथेली में उठा लिया। रावण मुझ पर ताव देने लगा, मैं बड़ा। तू बड़ा तो राम जी के हाथ से क्यों मरा? राम जी ने कहा मैं सबसे बड़ा। तो कहा जब आप सबसे बड़ा तो हनुमान जी के हृदय में क्यों जाके पड़ा? हनुमान जी ने कहा मैं सबसे बड़ा। अरे तुम सबसे बड़ा नहीं, तुम तो साधु संत के तुम रखवारे, તમે તો ચૌકીદારનું કામ કરો છો, સાધુ સંતોની રખેવાળી માટે તમારો અવતાર થયો છે। सबसे बड़ा कौन? हनुमान जी ने कहा, मेरे राम जी ने कहा मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, જેને પોતાના મનને મારી નાખ્યું છે એવા સંતોનો હું દાસ થઈને, અરે એના દાસના દાસ થઈને ફરું છું। मैं उनका चेला बन जाता हूँ। चाहे विश्वामित्र आ जावे तो भी मेरे गुरुजी, वशिष्ठ आ जावे तो भी मेरे गुरुजी, और वाल्मीकि जी आवे तो भी गुरु, अत्रि आवे तो भी गुरु, सप्त ऋषि आवे तो भी। मैं तो संतों को अपना सदगुरु बना लेता हूँ। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। तो सबसे बड़ा, राम से बड़ा
राम का नाम, राम का भक्त, राम का दास, राम का नाम जपने वाला राम से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, इस दुनिया में न पहले जल था, न थल था, न रूप था, न रंग था, न रस था, न स्वाद था, कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया जलमग्न हो गई थी, प्रलय हो गया था। जहां देखो वहां कुछ भी नहीं, सिर्फ शिव शिव शिव, भगवान पूर्ण ब्रह्म शिव के सिवाय दुनिया में और कुछ भी नहीं था। भगवान ने सबसे पहले अपने बाएं भाग से शक्ति को प्रकट किया। भगवान ने सबसे पहले अपने शरीर से शक्ति को प्रकट किया, शक्ति को प्रकट किया। इसके बाद भगवान ने विष्णु भगवान को प्रकट किया। विष्णु भगवान ने कहा मेरे को क्या करना है? बोले पहले तप करो। बिना, आपने गुजराती में कहावत छे, घसाया वगर उजरू थवाय। मानस ने डायरेक्ट बधो मेरे बोले दंडी बापू बनी जવું છે तो करो 5000 किलोमीटर दंडवत तो खबर पड़े हा हो याद आई जाए। दंडी बापू बनी जવું છે, दंडी बापू न बनाए। मैंने घना लोग पहला शुरुआत में 93 में 92 में ए वखते लगभग 1200-1300 मोरारी था। કેટલા મોરારી હતા? 1213। મોરારી બાપુનું નામ ચાલી ગયું, બધા પોતાના નામ આગળ, બાલ મુરારી, મજલે મુરારી, છોટે મુરારી, ફલાના મુરારી, મુકુંદ મુરારી, ભરત મુરારી, फलाना, भाई કેટલા બધા मुरारी। मेरे को भी किसी ने बताया बापू आप भी कुछ लिखो मुरारी। मैं बोला मैं क्यों मुरारी बनूं? मुरारी को बनना हो तो डंडी बापू बन के दिखावे। जाओ मुरारी बापू से कहो कि डंडी बापू बन जाओ। मैं डंडी बापू ही अच्छा हूं, मेरी अलग पहचान है यार। ढूंढ के आओगे तो डंडी बापू नहीं मिलेगा। मैं जितना सरल दिखता हूँ इतना सरल है नहीं। मैं तो आपके प्रेम भाव के कारण मैं आपसे सहज सरल मिलता हूँ, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है। उस कृपा का प्रसादी आप सबको भी मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे, विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, जही बिका वही वेद बुद्ध जाय धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वो बिना पैर का चलता है, बिना हाथ का छूता है, बिना आंख का देखता है, बिना नाक का श्वास लेता है, बिना मुंह का सब स्वाद लेता है। उस भगवान का कोई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं। विष्णु भगवान तुम तप करो। विष्णु भगवान ने तप किया और उनके तप से पानी का निर्माण हुआ। पानी को कहते हैं नार। पानी का निर्माण हुआ। अब पानी को देखा तो जहाँ देखो वहाँ, अब जगह कहीं माटी तो था ही नहीं, भूमि था ही नहीं, घर कहाँ बनावे? शंकर भगवान ने कहा अभी माटी कहीं है ही नहीं, इसलिए हे विष्णु भगवान इस पानी में ही आपका घर बना लो। जल में रहने लगे तो उनका नाम हो गया, बोलो जल नारायण भगवान की। जल में अब टिके कैसे, सोवे कैसे, बैठे कैसे, इसलिए शेषनाग का शैया बनाया। बोलो शेष नारायण भगवान की, शेष साई भगवान की, बोलो श्रीरंगम भगवान की। भगवान का जय जयकार हुआ। एक दिन विष्णु भगवान आराम से पड़े हुए आराम फरमा रहे थे और उनके नाभि में से एक कमल निकला और उस कमल पर 5 मुंह वाला ब्रह्मा जी बैठा हुआ। अब ब्रह्मा जी देखे कि मैं कहाँ से आया, तो देखा कमल से निकला हूं, तो सोचा ये कमल में कुछ होगा, तो कमल के डंडा में नाल में घुस गए। कभी नीचे जावे, कभी ऊपर जावे, कभी नीचे। ब्रह्मा जी के 4 मुंह चारों तरफ दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि मैं कहाँ से आया। आज हमारी आपकी यही दशा है। दूसरे की दिखती है लेकिन अपना देखो। मेरे स्टेटस में आज लिखा हुआ है, पढ़ लेना। दूसरे को सुधारने की कोशिश करने वालों, शुरुआत खुद से करो। दूसरों को सुधारने की कोशिश करने वालों, ऐसा करने के बाद देख लो क्या होता है। उधर एक जा रहा है,
बुरा जो देखन में चला, बुरा दिखा नहीं कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। मैं कितना बुरा हूं ये पहले देखिए। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, रात में 12 बजे जब नींद ना आवे, आप गम में खो जाएं, शेर शायरी लिखने लगे, सुनने लगे, अच्छा लगने लगे, तब ध्यान करके अपने परमात्मा का और अपने आप से पूछना, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। तब पता चलेगा तुम वो नहीं, कहीं तुम ओ तो नहीं, कहीं तुम ओ तो नहीं। तुम वही हो जिसको ढूंढ रहे हो। भगवान ने खुद कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में हूं। मैं कौन और मेरा कौन, इसका अनुसंधान करना। 6:30 बज गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने कह दिया, शंकर भगवान ने, आपका काम है दुनिया को बनाना, और विष्णु भगवान को कह दिया, आपका काम है पालन करना। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कैसे बनाऊंगा दुनिया को? दुनिया बनाने वाला मैं कौन होता हूं? बनाने वाले तो आप हो, करतुम अकर्तुम। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया। किसको किसको एक गीत अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा। और एक एक लाइन याद किसको है? एक एक लाइन। अभी सब गुनगुना रहे थे, अभी फिर झूठ बोलता है याद नहीं है। याद है तो बोलो, अभी कोई आपसे कुछ वापिस तो लेना नहीं है। ये गीत आपको अच्छा क्यों लगता है बताओ? ये गीत अच्छा क्यों लगता है? दुनिया, गाओ मेरे साथ सब। दुनिया मैं तो बोला था मेरे साथ गाना, आप लोग अकेले अकेले गा लिए। अब पता चला ना। हाँ, ओल्ड इज मुकेश जी के एक एक गीत, एक एक गीत। और मुझे तो इतना अच्छा लगता है मुकेश का गाया गीत। अगर मुकेश गाली भी देवे तो मैं बैठ करके प्रेम से सुन लूं। मुझे इतना उससे मोहब्बत है। गुजराती चलचित्रों पण एने गायु छे, नजर थी जाम, मुकेश का गाया हुआ है। उसने रामायण, पूरी रामायण गाया है, पूरी रामायण, रामायण उसका गाया हुआ, सुंदरकांड उसका गाया हुआ, मुकेश जी का गाया हुआ। उन्होंने भजन भी बहुत सुंदर सुंदर गाया है। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो, ये उनका गाया हुआ गीत है। सजन रे झूठ, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे क्या करना है? बोले आपको सृष्टि बनाना है, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, पहले पढ़ाओगे तब तो मैं मास्टर बनूंगा। कहा एक काम करो, मेरा स्वरूप देखो कैसा है। शंकर भगवान ने अपने शरीर को 2 हिस्सा में बांट दिया। आधे तरफ देखो तो पुरुष लगने लगे और इस तरफ से देखो तो स्त्री लगने लगे। तो भगवान का एक अवतार हो गया। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा ये क्या हो गया? पहले आप पुरुष थे पूरे के पूरे, अब तो आधे आधे हो गए।
ये कैसा क्यों हुआ? बोले ये इसलिए हुआ कि तुम इस दोनों स्वरूप को याद करो और एक स्त्री और एक पुरुष बनाओ। एक स्त्री बनाया और एक पुरुष बनाया। स्त्री का नाम हुआ शतरूपा और पुरुष का नाम हो गया मनु महाराज। तो ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर से मनु शतरूपा का उत्पन्न किया, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, जिससे हमको आपको प्रकाश मिल सके। क्योंकि हर जगह यही 3-4 चीज़ की तो पहले ज़रूरत होती है, पानी, बिजली, सड़क। अगर ये 3 चीज़ सरकार बढ़िया से देवे, अधिकारी लोग देवे, तो चाहे कितना भी घोटाला करे हम तुम विरोध नहीं कर सकते, अपने को अच्छा ही लगेगा। लेकिन हमारा सुविधा काट के वो खा जाता है, तब नहीं भी खाता है तो भी बुरा लगता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया? सूरज और चंदा को बनाया, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से मिल जाए, है? सूरज और चंद्रमा को बनाया, नक्षत्रों को बनाया, फिर भगवान ने रूप बनाया, रूप से फिर रंग बनाया, रंग से फिर बाद में जीव बनाया, स्वाद बनाया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सब अभी मन से ही हो रहा है। सृष्टि बनाए, मानसी सृष्टि का निर्माण किया। सबसे पहले नारद जी को मन से पैदा किया। मानसी सृष्टि से ज़्यादा विस्तार नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा था, तो भगवान ने देवताओं को बनाया कि तुम लोग भी हमें थोड़ा थोड़ा मदद करो। फिर भी पूरा नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने भूत बनाया। भूत योनि होती है, 84 लाख में भूत की योनि है, उसकी भी आयुष्य होती है। भगवान ने भूत बनाया, वनस्पति को बनाया। फिर भगवान ने देखा, ब्रह्मा जी ने, कि सृष्टि का विकास जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। तब से भगवान ने मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया। स्त्री पुरुष के समागम से बच्चा पैदा होगा, ये व्यवस्था बनाई। लेकिन हुआ ये, स्त्री पुरुष के संयोग से जो बच्चा पैदा हो रहा था वो सब भोगी पैदा हो रहा था, शौक मौज में लग गया। फिर चिंता होने लगी कि ये सब भोग में ही पड़ा रह जाएगा तो भजन कैसे होगा। फिर अनेक प्रकार की बीमारियों का निर्माण किया कि बीमारी के डर से लोग भोगपन कंट्रोल रखेगा। भोग का मतलब खाना पीना, गलत खाना, गलत पीना, गलत सोना, गलत उपयोग, उपभोग ज़्यादा करना। ब्रह्मा तो ये दोनों में एक दिन लड़ाई हो गई। एक दिन विष्णु भगवान बैठे थे, ब्रह्मा जी आए तो विष्णु भगवान ने कहा, बेटा बाप को प्रणाम तो करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुमको प्रणाम करूं? मैं तुमसे बड़ा, मैं तुमसे बड़ा हूं। कहा कैसे? कहा बनाता तो मैं हूं, तुम तो पालन करते हो, बनाने वाला मैं वह हूं, तो सबसे पहला काम मेरा है, मैं सबसे बड़ा। ये मोटाई नहीं लड़ाई पहला थी चालतू है, मैं बड़ा। विष्णु भगवान कहे, तू मारो दीकरो था, मारी नाभि माथी तारी उत्पत्ति थी, मेरे नाभि कमल से तुम जन्म लिए हो, तुम कैसे बड़े हो जाओगे? मैं तेरा बाप। ब्रह्मा जी कहे मैं तेरा बाप, विष्णु कहे कि मैं तेरा बाप। दोनों में लड़ाई हो गई। बेऊ बढ़िया बात है, बढ़िया पाछा नहीं पड़े, दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। अब ऐसी लड़ाई देवता लोग विचार करने लगे, दो मूर्ख झगड़ा करे, दो दारू पीने वाला झगड़ा करे तो उसको हटा दो, ठीक है। अब ब्रह्मा विष्णु जगत माता पिता, और ऐसे ब्रह्मा विष्णु में लड़ाई, इसका असर तो पूरे दुनिया में होगा। अगर ईरान इराक में लड़ाई हो जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका और चीन में, अमेरिका और रशिया में लड़ाई हो जाए तो पता नहीं कौन कौन सा बम फोड़ देगा भाई, फोड़ेगा, कहीं फूटेगा, कहीं सबका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सबको चिंता है कि ये दोनों की बड़े माथा वाले न लड़ें तो अच्छा। सबको चिंता हुई कि ये बनाने वाले और पालन करने वाले लड़ने लगेंगे तो फिर हम लोगों का बच्चों का क्या होगा। सब दौड़े दौड़े गए महादेव के पास। महादेव, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, हे नाथ, जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है जहर तो आप ही पीते हो, इसलिए महाराज ये दोनों लड़ रहे हैं, इनको कुछ करो, इनका कुछ उपाय करो। तो उपाय क्या किया वो आज ही का दिन हम लोग सबके लिए आ गया है। दोनों लड़ाई कर रहे थे, मैं बड़ा, मैं लड़ा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। ब्रह्मा जी विष्णु को उठावे, जोर से पटके छाती पर बैठ जावे, फिर
फिर विष्णु भगवान लात मारे, ब्रह्मा को कुदावे, पटक देवे, छाती पर बैठ जाए, ऐसा लड़ाई होने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा और देखा दोनों लड़ रहे थे, मल युद्ध करने लगे, द्वंद्व युद्ध करने लगे, एक दूसरे को पकड़ लिया। और इसी बीच एक लोहे का खंभा बहुत बड़ा प्रकट हो गया, उसमें से आग झर रहा था। अग्निमय स्वर्ण स्तंभ खड़ा हो गया बीच में। लोग देखने लगे कहां तक होगा, नीचे कहां तक होगा, ऊपर कहां तक होगा। अब बीच में अग्नि से संपूर्ण अग्नि का स्वरूप अग्नि स्तंभ खड़ा हो गया, तो ब्रह्मा जी थोड़ा इस तरफ हो गए और विष्णु भगवान हो गए इस तरफ। लड़ाई हो गई बंद। लेकिन अब दोनों ने विचार किया, पहले तो हम बड़े, तुम बड़े, तुम बड़े, हम बड़े, हम दोनों लड़ रहे थे, लेकिन अब ये तीसरा बड़ा आ गया। अब कौन बड़ा, अब कौन बड़ा? ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान फैसला करो, ये बीच में आ गया, ये इतना बड़ा। तो कहा एक काम करो, तुम जाओ ऊपर, मैं जाऊं नीचे। एक जाओ इसका क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, टोच, हाँ हिंदी में शिखा समझ लो। हाँ, आप शिखर का पता नहीं लगाने जाओ और मैं इसका फाउंडेशन देखता हूँ कहाँ से ये पाया उठाया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है। एक नीचे जाओ, एक ऊपर जाओ। ब्रह्मा जी गए ऊपर, अब विष्णु भगवान गए नीचे, लेकिन पार पा सके। विष्णु भगवान ने सोचा छोड़ो न, कहाँ इसका पार पाने, झगड़ा तो मिटा दिया न, अपने झगड़ा में पड़ना नहीं। विष्णु भगवान ऊपर आ गए थाक करके। ब्रह्मा जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे। शिवलिंग के ऊपर एक केतकी का फूल, केवड़ा फूल को आ गया अभिमान कि हम कितने बड़े, जिसके यहाँ ब्रह्मा विष्णु नहीं पहुंच पाते, मैं उनके माथे पर चढ़ने वाली, बैठने वाली है। आ गया अभिमान। शंकर भगवान ने माथा झुलाया और फूल गिर गई नीचे। 1000 वर्ष से नीचे आ रही है, अभी तक नीचे आई ही नहीं। बीच में मिल गए कहीं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी कहाँ जा रही हो? बोले मेरे को तो 1000 से ज़्यादा वर्ष हो गया निकले हुए, पता नहीं कहाँ जाऊंगी, कहीं का नहीं रह पाऊंगी। एक व्यक्ति ने कहा जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? नहीं कहता है हम तो कहीं के नहीं रहे। अब ऐसे जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? उनका ठिकाना कहाँ है? अब ये कहीं के नहीं रहे, जो भगवान के माथे से, भगवान के नज़र से, बड़ों के बुजुर्गों के नज़र से, समाज के नज़र से एक बार गिर जाए, फिर उसका उठना ब्रह्मा जी ने देखा केतकी को, सोचे कि मैं भी तो 2000 वर्ष से ऊपर जा रहा हूं, अभी तक ऊपर पहुंचा नहीं हूं, पता नहीं ये कहां तक होगा। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी एक काम करो, हम और तुम दोनों मिल जाए। 2 झूठ मिले तो एक सच्चे को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं। 2 झूठा मिल जाए तो एक सच्चा को परेशान किया जा सकता है। दोनों झूठे मिल गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो विष्णु भगवान नीचे गए हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुमने कह दिया कि हम दोनों ऊपर जाके आए हैं और चोटी का पता लगा के, शिखर का पता लगा के आ रहे हैं। केतकी ने मना कर दिया, मैं झूठ क्यों बोलूं? थोड़ा सा अहंकार किया तो नज़र से गिर गए। देखो पहाड़ से गिरा हुआ ऊपर उठ सकता है, लेकिन अगर कोई नज़र से गिर जाए तो कभी उठ नहीं सकता। इसलिए कभी ठेस लग जाए तो बड़ा ठोकर खा लेना, बड़ा गिर जाना, लेकिन किसी के नज़र में गिर जाओ ऐसा काम कभी जीवन में मत करना। केतकी ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी मैं झूठ नहीं बोल सकती। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम अगर जीत जाएंगे तो हम भगवान प्रथम पूज्य राजा बन जाएंगे, और राजा बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो तुमको कम से कम राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री तो बना ही देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा आप प्रमुख हो, आप मेरा नाम प्रधानमंत्री में बना दो तो मैं आपको बड़ा मंत्रालय बना दूंगा, फिर आपको हटाऊंगा नहीं। मैं जब तक प्रधानमंत्री तब तक आप रक्षा मंत्री बने रहो। आप कुछ भी ना करो तो भी आपका नाम दूसरा नंबर में लिखा हुआ हमेशा आएगा। मान गए रक्षा मंत्री जी।
केतकी ने कहा ठीक है चलो विष्णु भगवान के पास। दोनों आ गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान को पूछा क्यों विष्णु भगवान जाके आए? बोले नहीं भाई मैं तो पता नहीं लगा पाया, आप जाके आए? बोले हाँ जाके आए। विष्णु भगवान ने सोचा जब मैं ही नहीं पता लगा पाया तो ये कहाँ से पता लगा पाएगा, क्योंकि किसी भी मकान का पाया जितना नीचे होता है उससे 10 गुना 20 गुना ऊपर ज़्यादा होता है, पाया से ज़्यादा ऊपर होता है। मैं नीचे का पता नहीं लगा पाया तो ये ऊपर का कैसे पता लगा लिया? विष्णु भगवान ने कहा मैं सर्टिफाई नहीं हो रहा हूं आपके साथ। तो कहा आपको होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था आप नहीं मानोगे, इसलिए मैं साक्षी लेकर के आया। कौन है साक्षी? बोले केतकी का फूल केवड़ा, ये इससे पूछ लो। केतकी ने कहा हाँ हम दोनों साथ में ऊपर से आए हैं, हम दोनों साथ से आए हैं। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मान लेते हैं, हार मान लेते हैं, इसमें क्या है। ब्रह्मा जी आप बड़े, ब्रह्मा जी का पूजन करने के लिए उनको चौकी पर बैठाया और जब ही पूजन करने की तैयारी हुई तब शिवलिंग फटा और बोलो हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और जटा को खोला, पछाड़ा और काल भैरव को पैदा किया। काल भैरव ने तलवार लेकर के हाहाकार करना शुरू किया, बोलो मालिक क्या आज्ञा है मेरे लिए? तेरे लिए आज्ञा है ये झूठे ब्रह्मा का माथा काट डालो। तलवार लिया, घड़ी का छठा भाग आपने कहिए ना, ब्रह्मा जी का माथा काट लिया। काल भैरव अभी भी गुस्सा से तिलमिला रहा है और जैसे दूसरा माथा काटने के लिए तलवार घींचा, विष्णु भगवान ने शंकर भगवान के पांव पकड़ लिए। हे सदाशिव भोलेनाथ, हे ब्रह्मांड के मालिक, आप क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? बोले इस ब्रह्मा को छोड़ दिया जाए। अरे नहीं छोड़ सकता, झूठ बोला है, सत्य से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है। झूठ बोलने वाला किसी भी धर्म का, संप्रदाय का कैसा भी हो, झूठा तो झूठा ही होता है। झूठ बोला है, झूठ बोल के बड़ा बनने जा रहा है, मैं इसे बड़ा नहीं बनने देना चाहता। और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने उनके पांव पकड़ लिए। शिव को दया आ गई, हम आप पर प्रसन्न हो गए हैं, बोलिए क्या करना है? बोले ब्रह्मा जी को रहने दीजिए। ब्रह्मा जी नहीं होंगे तो यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ में पहले ब्रह्मा को बैठाना पड़ता है। एक ब्रह्मा जो ब्रह्मा बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, यज्ञाचार्य होते हैं, उनको ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है। जब तक उसका वरण नहीं होता है तब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए ब्रह्मा का होना जरूरी है, नहीं तो यज्ञ आदि कार्य बंद हो जाएंगे। ब्रह्मा को रहने दो। पांव पकड़ लिए। अब शिव भगवान ने आदेश कर दिया आप रुक जाइए। शिव भगवान ने आदेश दिया। काल भैरव ने कहा महाराज बुरा काम हमसे करवा लेते हो, कहीं अच्छा में मुझे रखते ही नहीं हो, न मेरा कोई नाम लेता है, न मेरा कोई पूजा करता है, ये मार काट करना हो तभी काल भैरव याद आता है। शंकर भगवान ने कहा तुम काशी के कोतवाल बन के रहोगे, अगर कोई काशी की यात्रा करने आएगा और तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तो उसे काशी की यात्रा उसकी सफल नहीं होगी, उसे पुण्य नहीं मिलेगा। काशी जाओ तो सबसे पहले महादेव जी का दर्शन जरूर करना, लेकिन काल भैरव भूलना नहीं। काल भैरव सब जगह होते हैं, काल भैरव ही शिव की यात्रा की आपको साक्षी देते हैं। तो काल भैरव को आशीर्वाद दिया गया है। काल भैरव फिर शांत हो गए हैं और ब्रह्मा जी को छोड़ दिया गया है। ब्रह्मा जी को दंड दिया कि तुम पूजा में सदा अमान्य रहोगे, तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, तुम्हारा मंदिर कहीं नहीं होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा महाराज इतने बड़े ब्रह्मा दुनिया को बनाने वाले और इनका कहीं पर नामो निशान नहीं रहेगा तो वो ठीक बात नहीं है। तो पुष्कर में जा करके एक जगह ब्रह्मा जी को रहने के लिए मंदिर बनाने की छुट्टी दे दी गई। ब्रह्मा जी का मंदिर भला कहीं कोई बनाता नहीं है, सिर्फ वहाँ पड़े हुए हैं। विष्णु भगवान को
आशीर्वाद दिया, आज से तुम हमारे सलाहकार, हमारे मित्र और हमारे मित्र भी हो, हमारे इष्ट भी हो। जो सत्य का पालन करता है वो सत्य को मानने वाला नारायण से भी बड़ा हो जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान। आप आज से सत्यनारायण हो गए क्योंकि आपने सत्य का आश्रय लिया। हर जगह आपकी पूजा होगी, आपके अनेक रूप होंगे, अनेक अवतार होंगे, आशीर्वाद दे दिया। अब जब ब्रह्मा जी का माथा कट गया तो केतकी का फूल, केवड़ा का फूल, इसकी क्या दशा हुई होगी विचार कर लो। दूर कोना में खड़ी खड़ी ये फूल तो थर थर कांपने लगी, अब मेरा क्या होगा। शंकर भगवान ने उसको दुत्कारा कि जाओ, तुम तो मारने के लायक नहीं हो तुम्हें, लेकिन किसी का अपमान कर देना वो भी मरण के जैसा होता है। तुम्हारा ये अपमान है कि मैं अपने नजरों से तुम्हें दूर कर देता हूँ, अपने से दूर कर देता हूँ। थप्पड़ मार देवे, लड़ाई कर लेवे, झगड़ा कर लेवे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई बोलना बंद कर देवे, बड़ा खतरनाक परिस्थिति पैदा हो जाती है। आओ वे दो थप्पड़ मार दो, लेकिन बोलना अगर कोई अपना संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ठेस पहुंचा है। शंकर भगवान ने कहा ये फूल की कीमत ही क्या, कैपेसिटी क्या, जिसको मैंने माथे पर बैठाया फिर भी ये तुच्छ धन के लिए झूठ बोल दिया। तब से आज तक झूठी गवाही देने का, अभी तो जो वकील लोग होते हैं ना वो 2-4 गवाही हमेशा तैयार रखते हैं 3000 रुपया में। 3000 रुपया दो, किसी का भी झूठ गवाही पुरवा ले, उनको तो 3000 मिला, 3 मिनट में काम खत्म, जय राम जी की। लेकिन समझ लेना भगवान के आगे से कोई बच के जा नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया, तुम्हें अब हमारे पास अगर कोई चढ़ा देगा तो उसी को हम श्राप दे देंगे। उसको दूर किया। भगवान कह रहे हैं, केतकी बोली मैं तो बहुत सुंदरी हूँ, बहुत सुंदर सुबास देती हूँ। बोले सोने का सुराही इस किस काम का जिसमें पानी ठंडा ही नहीं होता हो। किसी ने मटके से पूछा, किसी ने मटके से पूछा कि तुम्हारी तासीर ठंडी कैसी है, कैसे है। मटके ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं पहले भी माटी थी और टूटने के बाद भी माटी ही रहना है, तो मैं किस बात की गर्मी अपने आप में लाऊं, इसलिए मेरी तासीर ठंडी रहती है। हे मनुष्य, ये माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, घमंड किस बात की करते हो। घमंड अगर करना हो तो इस बात का करो, मैं अपने भगवान का और भगवान मेरे, इस बात का घमंड करें, भक्ति का घमंड करें। भगवान ने केतकी को बताया। उसी समय सामने देखा तो एक धतूर का पेड़ था। धतूर के फूल को भगवान ने बुलाया, उसको सम्मान दिया। ये करवा है तो है, किसी को मीठा होने का दावा तो नहीं करता है, झूठ तो नहीं फंसाता है। देखने में भले कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई कैसा भी है, भगवान को तो वही प्रिय है जो भगवान का गुण गाता है। भगवान से पूछा नारद जी ने, भगवान आप सही सही बताना, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, आपका असली निवास स्थान कहाँ है। वैकुंठ में, जल में, क्षीर सागर में, बलि के यहाँ, कहाँ रहते हो प्रभु। भगवान ने कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं क्षीरसागर में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में जाके रहता हूँ। मेरा भक्त जहाँ मेरे नाम का कीर्तन करता है, कथा करता है, सत्संग करता है, मैं तो वहीं रह करके आनंद करता हूँ। भगवान अभी कहाँ हैं? हमारे आप सबके बीच में हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बस हम कथा में हैं, कीर्तन में हैं, भजन में हैं। समय की मर्यादा अब इजाजत नहीं दे रही है। जय जय जगदीशा प्रभु, जय जय जगदीशा।
पार्वती पति परमेश्वर दया सिंधु देवा ओम हरे 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 महादेव भस्म शीर अंकंत जय त्रिशूलधारी प्रभु जय त्रिशूलधारी विषधर फणिधर कंठे विषधर फणिधर कंठे सोहे त्रिपुरारी ओम हरे 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 महादेव आदि अनादि अनंत सचराचर स्वामी प्रभु सचराचर स्वामी वरदाता विश्वेश्वर वरदाता विश्वेश्वर विभु अंतर्यामी ओम हरे 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 महादेव चरण सरोज मधुरम ममृत ये खाओ प्रभु ममृत ये खाओ जिन बंधु दुख हरता जिन बंधु दुख हरता तब शरणु साधु ओम हरे 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 महादेव नंदी ने वीरभद्र देवु गणकारा प्रभु देवु गणकारा दक्षनु शीश उतारी दक्षनु शीश उतारी जय 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 काला ओम हरे 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 महादेव शिव शंकर की आरती जय कोई गासे प्रभु दे प्रेम गासे अंतकार शिव गण सह अंतकार शिव गण सह शिव लोके जासे ओम हरे 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 महादेव जय शिव शंकर जय गंगाधर जय जय जगदीशा प्रभु जय जय जगदीशा पार्वती पति परमेश्वर पार्वती पति परमेश्वर दया सिंधु देवा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरे सर्वं